Margdarshan 1.0, as the name suggests, is a platform for our students to connect with their alumni based on three pillars, that is, to expand, to enhance, and to envision, to explore and reinvent stronger destinations for themselves in their career journey. For the same, we are pleased to have with us Mr. Lokesh Chauhan, Senior Business Analyst, American Express, and of course, a proud alumni of Lloyd Business School, who will be sharing his inspirational leadership journey with us. Over to you, Mr. Lokesh. Very good afternoon to everyone. And first of all, I would like to say thank you so much for inviting me for such a great Mark Darshan event. And I'll be very proud and to share my Lloyd's journey. First of all, I would like to say thank you to the Alka ma'am and entire Lloyd faculties, providing this opportunity to me. Yes, definitely looking forward it. Definitely looking for the session. So, how are you, all of you? Very good afternoon. Hope you all are safe and doing good. Currently, as you all know that Alka ma'am has given my introduction that currently I do work in American Express as a senior business analyst, and I did my MBA from Lloyd in finance and marketing. The batch was 2016 and 18. When I joined Lloyd, I know very well the first day was the orientation day, and it was like something different because as a human psychology, we do have a क्या होता है कि हमें वो होती है हमारे अंदर से क्यूरियोसिटी होती है वी हैव अ क्यूरियोसिटी दैट कि यार कैसा होगा कॉलेज व्हाट अबाउट द थिंग्स कैसे फैकल्टीज होंगे वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा सो डे वन वाज लाइक प्रीटी मच जो ओरिएंटेशन था इट वाज लाइक प्रीटी ओके फॉर मी बिकॉज यू नो कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं फॉर श्योर एंड दोज एक्सपेक्टेशन आर देयर कि because at the end of the day after post graduation all of us we have we want to go and we want to make our career in respective terms. Yeah, so coming back to the Lloyd's journey, I joined the on the day one there was the orientation. So I had many of the questions in my mind, like you guys are also having that. How is the campus? How are the faculties over there? How I'm gonna progress my career in terms of everything. And अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर इसके बाद क्या तो वो जो डाउट्स होते हैं वो मेरे उसमें भी दिमाग में भी थे एंड ट्रस्ट मी लिटरली फर्स्ट वीक इट वाज लाइक कि आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है हाउ आई एम गोना डू इट how are you going to connect with the faculties because that was a very new place for me and I haven't any idea about the Greater Noida also to be very honest. So yeah, that was I have to adapt it in that environment, but as soon as the gradually the time went and then everything started. So I got to know that the college is a very good. All the faculties over there were very supportive to me. I started in 1 month. Within the 1 month span of time, I got to know that the faculties there are doing the finest job. They are doing each and everything for every student. I think we had around 60 to 70 students in our batch who were attending the classes, and the faculty focus was on every single student, which is very amazing because a teacher try his best, but sometimes what it happens that the focus doesn't get on the every student because every student have this kind of something going on in his or her head. But I was very amazed that the focus which they did initially in the first month, I was very impressed with it. And to be honest, I didn't expect that very on because in post graduation, what we think that 70 to 80% work should be done by students. The teacher or lecturer job is to just guide because we are not at the school age. We are here, we'll go out after the post graduation, we will do jobs and all kind of things. But I was amazed that they were providing each and everything which was very beneficial to us. तो एक वो होता है ना कि जैसे एक तरीके से अपने बच्चे को गाइड करते हैं, तो उस तरीके से जो गाइडेंस मुझे उस टाइम पे मिला और मेरे कलीग्स को जो मेरे वो थे साथी थे स्टूडेंट्स थे मेरे दोस्त थे जो उनको मिला, उसके लिए मैं आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू द कॉलेज और बहुत मैं खुश था कि यार चलो मैंने जो अपना डिसीजन लिया एमबीए करने का, चलो अच्छा किया कि मैं इस कॉलेज में मैं आया। धीरे धीरे जैसे मेरी जर्नी बढ़ती गई अब डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट्स हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं फॉर श्योर, चाहे वो हमारे स्कूल के टाइम पे हो, चाहे वो हमारे ग्रेजुएशन के टाइम में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में हो। सो आई ऑल्सो फेस सम काइंड ऑफ अ चैलेंजेस, सो वो मैंने ओपनली रखे
तो बेस्ट पार्ट वहां पे क्या था कि उस चीज को ना लेते, मतलब कई बार होता है कि कॉलेजेस लाइक कई बार ऐसा हो जाता है कई जगह, यू नेवर नो कि ये सामने वाले पर्सन का क्या बिहेवियर है. सो द बेस्ट थिंग वाज दे टुक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. उस पॉजिटिव नोट्स पे दे वर्कड ऑन इट, एंड विद इन टू 3 to 4 months, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर खत्म ही हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर के बिगिनिंग में they changed, they tried to enact all those things which we required as a student. So वो देख के मुझे और काफी अच्छा लगा कि यार wow, whatever suggestion we are giving, the college is doing its best to implement for the student, for the betterment of our career, for the betterment of our studies. तो ये चीज देख के मुझे बहुत काफी अच्छा लगा था, काफी सेटिस्फैक्शन मिला था, एंड आई वाज प्रीटी मच अमेज्ड कि कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिया गया कि मेरे ऊपर कि यार ये बंदा क्यों बोल रहा है या कोई और क्यों बोल रहा है, मतलब इसी के उससे ही क्यों बोला जा रहा है, किसी और ने क्यों नहीं बोला. सो एक वो चीज थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जब आप किसी भी कॉलेज को क्या आप कहीं भी कुछ सजेशन देते हो ना, तो कई बार वो सजेशन आप पे बैकफायर भी कर जाता है कि भाई आप ही को क्यों वो चीज है या फिर ये क्यों है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं हुआ. यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को लिया गया, उन्हें पॉजिटिव वे लिया गया, पॉजिटिव नोट पे लिया गया, एंड दे हेल्प मी आउट, जिससे मैं बहुत खुश था. टॉकिंग अबाउट व्हेन आई डिड द एमबीए ओवर देयर, बहुत सारी चीजें अब मैं कंपैरेटिवली अगर मैं करूँ तो बहुत सारी चीजें बहुत चेंजेस हुई हैं, and thanks to the college that they are investing more and more in the infrastructure for the studies and for all every other things, because हमारे टाइम पे corporate lectures नहीं थे. There is a difference between practicality and theory. थ्योरी पढ़ के आप प्रैक्टिकल करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होता. अगर कोई आपको कॉर्पोरेट का बंदा आके बताएगा कि ऐसी ऐसी चीजें वहां वर्क करती हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं. बुक्स रीडिंग तो कोई भी कर लेगा, ठीक है. सो कॉलेज में मैंने ये चीज देखा है कि दे आर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो रेदर देन द थ्योरी पार्ट्स, बिकॉज थ्योरी तो आप खुद ही एग्जाम में पढ़ के पास आउट हो जाओगे, बट प्रैक्टिकलिटी का क्या. सो द बेस्ट पार्ट इज दे आर फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो. सो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा दैट हाउ द कॉर्पोरेट मैकेनिज्म वर्क्स, बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप जब जाते हो एज अ फ्रेशर टू द इंडस्ट्री, सो वहां पे ये चीज होता है कि हाउ यू गोना इम्प्लीमेंट द थिंग्स व्हिच यू हैव स्टडीड. वो मतलब बहुत रेयर होता है कि कुछ चीजें जो आपने स्टडी की हो कि वहां पे इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज कॉर्पोरेट का अपना ही मैकेनिज्म है, वो अपनी ही तरीके से वर्क करता है. यू नेवर नो कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. So that's the best part, that you guys will get the corporate lectures which will enhance you to develop your skills and which will enhance कि तुम्हें कैसे वर्क करना है इन कॉर्पोरेट. अगर तुम्हारा लग भी जाता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, because you have an experienced mentor who has guided you in terms of your MBA career or in your MBA span from Lloyd, and now you can show your confidence skills towards the company कि हाँ भाई मैं आया हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं, see I got the this skills. So this is a very big plus point. मेरे टाइम पे नहीं था, आपके टाइम पर है यार. अगर मेरे टाइम पे होता तो क्या पता मेरा बेस कुछ और अच्छा हो जाता जो करेंटली है. बट एज दिस से कि थिंग्स को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है. चेंजेस हो रहे हैं एंड बहुत अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. सो ये चीजें हैं. और मेरे टाइम पे क्या था, देयर वाज अ मैगजीन कॉल्ड बिजनेस वर्ल्ड करके एक मैगजीन आती है, काफी कॉस्टली है, which is like there is a n number of things over in that magazine. वो मैगजीन पढ़ के मुझे काफी नॉलेज हुई दैट व्हाट काइंड्स ऑफ करियर आई वांट टू गो, और कैसे मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है, कैसे कॉर्पोरेट वर्क करता है, व्हाट आर द थिंकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स ओवर देयर, हाउ दे थिंक, हाउ वन शुड स्टार्ट द career and all kind of things. So rapidly that initiative which Lloyd took for us कि भाई MBA के स्टूडेंट्स को हमें बताना है कि करंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज सी आपको कोई नहीं बताएगा. The age in which you guys are gonna pursue the post graduation. After post graduation you have a career ahead. Nobody is gonna tell you what you need to do, because this is a age where you like अरे यार ये क्या बोलते जा रहा है, क्या बोलते जा रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं. You will listen from 1 year and you will take out from another year. ये एज ऐसी होती है, because I have also gone through it. तो यहाँ पे हमें जो वो लॉयड मैगजीन मिली थी हमें बिजनेस वर्ल्ड की, which is now currently changed to the Lloyd Chronicle, which is a very great achievement for the college that they have managed their own magazines in which you will get the informations about the world, about what is happening in the corporate, about the economics, about the everything which about the business world. You will get each and every kind of a knowledge which you want, and that you can enhance in your MBA skills, that how
यू गोना डू इट, बिकॉज एक चीज होती है कि भले ही आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हो, 90% हो, फर्स्ट डिवीजन हो, एट द एंड वो मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आपने जो सीखा है उस 2 साल के पीरियड में, आपने क्या सीखा है, क्या नॉलेज के साथ आप कॉर्पोरेट में आ रहे हो, और आप क्या एसेट हो कंपनी के लिए या लाइबिलिटी हो. ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है. सो एक चीज याद रखना जो लॉयड ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई थी, इररिस्पेक्टिव 10 मिनट का टाइम मिले, 10 मिनट का टाइम मिले, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ कि तुम्हें किस चीज में बेटर होना है, किस चीज में तुम्हें आगे अपना करियर बनाना है. अभी फर्स्ट सेमेस्टर से ही सोच लो, बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चों की क्या थिंकिंग होती है, विच आई हैव सीन, एंड हमारे बैचेस में भी ये इशू था, बट थैंक्स टू लॉयड कि उन्होंने हमारा ये सॉल्व किया एंड फोकस करवाया हमें ये चीज. बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर है चलो ऐसे ही निकाल देंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, विच इज कॉमन. थर्ड सेमेस्टर से स्पेशलाइजेशन का चीजें शुरू होती है, दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस. बहुत वाइड एंड स्कोप होता है कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इट गेट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड द हेड. सो डिसाइड राइट नाउ, राइट अवे, कि तुम्हें किस फील्ड में करियर बनाना है, उस चीज की तैयारी करना शुरू करो. व्हाट लॉयड टॉट अस इन द फर्स्ट सेमेस्टर, जो 10 मिनट की मैं बात कर रहा था, 10 मिनट की बात वो ये थी कि read newspaper daily. I know this is a digitization वर्ड है ये. यहाँ पे आपके पास आपके एंड्रॉयड फोन्स होंगे, आप उसमें रीड कर सकते हो. आप चाहे तो मैनुअल न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो. आपको सारी न्यूज़ रीड करने की जरूरत नहीं है. आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूज़ रीड करने की जरूरत है, लाइक बिजनेस से रिलेटेड आपको, कि फाइनेंस में क्या चल रहा है, या मार्केटिंग में क्या चल रहा है, कंपनीज में क्या चल रहा है, अराउंड द वर्ल्ड की कंपनीज में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स का क्या हाल है, क्या नीचे चल रहा है, क्या गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज आई हैं जो आगे हेल्प कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. 10 मिनट डेली के, 2 साल है आपके पास, 10 into 2 साल कर लो. आपके पास जो नॉलेज होगी ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही कोई छीन सकता. और जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट इतना वंडरफुल पड़ेगा कि द कंपनी विल से वाओ यार, इसको तो सब पता है, इसको नॉलेज है इस चीज की, विच इज समथिंग लाइक वेरी अमेजिंग. ये चीज द लॉयड टॉट अस इन द फर्स्ट सेमेस्टर कि जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क, गिव 10 minutes daily to read the newspaper, to read the things, और to read the magazines. 10 मिनट डेली क्या है, 10 मिनट कुछ नहीं होते, इतना तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट यूज कर ही लेते हैं, आधा आधा घंटा, एक घंटा. एक 10 मिनट अगर हम न्यूज़पेपर को दे देंगे, या अपने ऊपर वर्क कर लेंगे, या मैगजीन को दे देंगे, वो 2 साल जो आपके हैं, इट विल बी वेरी वंडरफुल. नाउ कमिंग इट टू द फैकल्टीज यार बहुत औसम है यार, सीरियसली, बिकॉज एट दिस टाइम आई एम वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस. सो अभी भी जो मेरा इनके साथ कनेक्शन है, it's like a very inseparable connection. They are very close to my hearts. I'm very close to them, to their hearts. ऐसा मुझे लगा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, बिकॉज डाउट्स होते हैं जब आप ज्वाइन करते हो, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. But the way they handled me, the way they guided me, the way they mentored me throughout my MBA journey, and still they do. Still अगर अभी भी मैं कहीं फंस जाता हूँ या कुछ हो जाता है, so I definitely recommend their suggestions. I definitely tell them the entire scenario कि ऐसा ऐसा है, कि ऐसा ऐसा क्या करूँ मैं कि मैं इस सिचुएशन से उभर जाऊँ. जैसे कभी कभार क्या होता है, एक एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस. आई डू गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम सम अदर कंपनी with a decent hike, let's say. सो माई डाउट इज वेदर आई शुड लीव एमेक्स और नॉट. तो ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, कई बार पैसों के चक्कर में कंपनियां छोड़नी पड़ती हैं, बट वो अदर एडवांटेजेस नहीं मिल पाते हैं. सो इन चीज़ों में दे हैव गाइडेड मी लाइक कि नहीं, यू शुड फोकस इट, अभी हो, लेट इट बी, स्टिक इट टू इट, लर्न मोर एंड मोर, ग्रो मोर स्किल्स, ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो. सो विच इज़ लाइक यार, विच इज़ वेरी अमेजिंग कि स्टिल दे आर, बिकॉज मैं पास आउट हो चुका हूँ, एमबीए पास आउट, मेरे को 2 साल हो गए एमबीए करे, बट 2018 आई पास आउट, एंड इट्स 2020, स्टिल वी आर इन टच, स्टिल दे गाइड मी. सो विच इज लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स ओवर देयर कि thank you so much, for doing such a wonderful, lovely job which you are doing, not with me, with the entire student in every batch which appears, because it's a very hard job. ये एक ऐसी जॉब होती है जिसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है. हमारी जॉब में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है, सब चीज मिलता है. ये एक ऐसी जॉब है जहाँ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, बिकॉज हर साल बैचेस आते हैं, हर साल बैचेस जाते हैं, एंड दे हैव टू डू द सेम थिंग. एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग कि इन्होंने कैसे किया है और कैसे करते आ रहे हैं. विद एवरी स्टूडेंट इज कमेंडेबल. सो round of applause for all the teachers over there, and thank you so much for making me whatever I am today. It's because of the Lloyd. Thank you, teachers, I would like to say.
there is some question popping up around in the chat. Someone is asking how come business analytics after MBA finance. Oh, that was asked by Rahul. So Rahul, coming on to your question, it's like, see, now Lloyd has one thing also, the IBM. IBM is a great giant with the in MNCs. So they have a tie-up with the IBM now, and the IBM Analytics Lab is set up over there, and they are giving up the business analytics course. So business analytics course, as we all know, the analyst positions are required in each and every company. There are various positions that has to be filled for the analyst. There are data analyst, there are research analysts, there are fraud data analyst, fraud research analyst. Means analyst requirement is very huge in the market. Analyst, what do you mean by analyst? Analyst means who analyzes a thing. So analyst demand is gonna increase, and you know, I'm very amazed that they have set up the IBM Analytics Lab just for you guys, so that you guys get an help. And believe me, trust me, analytics, I haven't had any I wasn't very good in analytics. मेरा बिल्कुल भी हाथ अच्छा नहीं था, because मेरे टाइम पे वो फैसिलिटी नहीं थी. तो वो फैसिलिटी क्या है, जब मैं कॉर्पोरेट में गया, आई वेंट इनटू द अमेरिकन एक्सप्रेस, थैंकफुली इन ट्रेनिंग, बिकॉज आई हैड द ज़ील टू लर्न. एक चीज और, कभी भी अपनी ज़ील को मत खत्म होने देना. यू शुड बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. यू शुड हैव दैट ज़ील. अगर वो ज़ील नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है. ठीक है, तो वो ज़ील जिंदा रखना. एंड थैंकफुली द कॉलेज इज डूइंग right things and taking right steps. So coming to the analytics part is मैंने सीखा, and now it's very good to know that कि हाँ, मेरा analytics में हाथ काफी अच्छा है. I'm very good at it. So वही चीज है कि जहाँ मैं लैग करता था जिस चीज में, उस चीज में लॉयड आपको अपर हैंड दे रहा है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप अदर कॉलेजेस से कंपेयर करोगे, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स नहीं हो रहा है, सो दे हैव वो आपसे नीचे रहेंगे. जो प्रेफरेंस होगी कॉर्पोरेट की या किसी भी कंपनी की, वो प्रेफरेंस होगी आपके लिए कि भाई इसको तो ये चीज आती है, मुझे इस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे इसको ट्रेन करने की जरूरत है, ऑलरेडी ट्रेंड है. सो व्हाई शुड आई नाउ गो फॉर इट? तो वहां पे आपका एक प्लस अपर हैंड हो जाएगा, बिकॉज जो आपका बैच होगा 2020 2022, आप अपने आप से तो compete करोगे ही करोगे, आप बहुत अदर इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे भी compete करोगे फॉर जॉब. सो जब आपका एक अपर हैंड रहेगा फॉर बिजनेस एनालिटिक्स की, यार इसको तो आता है, इसको मैक्रोज आते हैं, इसको पाइथन आती है, इसको कोडिंग आती है, C++ आता है, जो भी आपको लॉयड ने सिखाया होगा थ्रू IBM सर्टिफिकेशन, जो भी होगा, एक सर्टिफिकेशन का रिज्यूमे में होना इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू गाइस. ठीक है, तो काश मेरे टाइम पे होता है यार, बट नहीं था अनफॉर्चुनेटली. बट तुम्हारे लिए है तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाओ. तो वो अपर हैंड तुम्हें इतना हेल्प करेगा ना कि जो तुम्हारा करियर होगा वो एक बहुत अच्छे टर्म से स्टार्ट होगा. एंड ट्रस्ट मी, एनालिटिक्स की डिमांड बहुत है. ठीक है, some people are asking me कि भाई मेरा बैकग्राउंड क्या है, can you please suggest some courses to enhance skills? I am thinking about choosing finance. यार मानसी, if you are choosing to make career in finance, so yeah definitely यार business analytics तो है ही है. business analytics आप कर सकते हो, because see Excel अगर आप कर सकते हो, एडवांस एक्सेल इज अ थिंग जो हर किसी को आना चाहिए, इररेस्पेक्टिव चाहे आप फाइनेंस करो, मार्केटिंग करो, HR करो या कुछ भी करो, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी मैंडेटरी. मैक्रोज आने चाहिए. अगर आपको ज्यादा कुछ और करना है, आप सैप है, सैप का फीको होता है, MM होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, ये कर सकते हो आप उस चीज के लिए, विच विल इनहेंस योर स्किल्स एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड पैकेज एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. Somebody is asking me, sir, please tell about your background, education, graduation, and the schooling, as I am from a science background. So will it be tough for me to manage studies? Oh yeah, that's a point I forgot. Okay. So coming on to this, yeah, when we pursue MBA, जब हमारा भी बैच था, so different streams से लोग आते हैं, for sure, science से भी आते हैं, commerce से भी आते हैं, arts से भी आते हैं. Plus पार्ट यहाँ पे अपर हैंड कॉमर्स वालों का हो जाता है, बिकॉज वो 11th और 12th में वो चीज़ें उन्होंने स्टडी करी होती है. एंड आई वाज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो आई हैड एन अपर हैंड कि मुझे ये चीज़ें आती थी या नहीं आती थी. तो मतलब मेरे दिमाग में थी, सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में वो चीज़ें थी जो पढ़ाई गई थी. बट जो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, जैसे मेरे कुछ दोस्त थे उस करंट बैच में 16-18 में, जो फैकल्टी ने जिस तरह से पढ़ाया, जिस तरह से दे हेल्ड कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई बैकग्राउंड चाहे कुछ भी बैकग्राउंड हो, उससे मैटर नहीं करता था. ऑल ऑफ देम स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स एंड ऑल ऑफ देम वेर प्रिटी मच हैप्पी कि हाउ द टीचर्स वर टीचिंग
was commendable, क्योंकि यार ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो साइंस बैकग्राउंड से थे, क्योंकि इतनी जल्दी वो सीख गए चीजें। बिकॉज एक होता है ना यार कि टीचर्स का था, फैकल्टीज का था कि यार हमें करवाना है हमारे लिए। मुझे अच्छे से याद है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, मुझे होता था अच्छा ये तो हो गया, मैं फटाफट कर देता था। जब तक एंटायर क्लास वो क्वेश्चन नहीं करती थी या वो सॉल्व नहीं होता था या डाउट रहता था, मूव ऑन नहीं किया जाता था उस टॉपिक से। जब क्योंकि फोकस था कि चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, वी ऑल हैव टू बी ऑन द सेम पेज। और हर कोई यहाँ पे इक्वल है। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट कि वो जो 40 टू 45 मिनट्स का जो लेक्चर होता था, चीजें वहीं तक डिपेंडेंट नहीं थी, चीजें उसके अलावा भी डिपेंडेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम लॉयड की गैलरीज में हम कभी जाते थे, सर ये डाउट है प्लीज, मैम ये डाउट है, कैन यू प्लीज हेल्प अस, दे यूज टू हेल्प अस। ऐसा नहीं होता था कि हाँ हाँ अरे नहीं ठीक है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इमीडिएटली दे यूज टू इनैक्ट एंड से अच्छा ये आ जाओ आ जाओ मेरे कैबिन में आ जाओ, लेट्स डू दिस ए। और वो पूरा बकायदा अच्छे से समझाते थे। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो पूछी कि साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं, सैटरडेज को एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। सैटरडेज को एक्स्ट्रा क्लासेस उन बच्चों के लिए होती थी जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, जिनको चीजें समझ नहीं आती थी, उनको टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे। टीचर्स को ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी भाई, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ाते, उनका अगर ऐसा होता वो आते पढ़ाते चले जाते, समझ आए ना आए, क्योंकि हम स्कूल में नहीं है, हमें वो सब चीजें नहीं करनी है, स्पून फीडिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग वो नहीं करनी है। टीचर आते जाते पढ़ा के निकल जाते। बट जिस तरह से उन्होंने सैटरडेज को एक्स्ट्रा क्लासेस ली, क्योंकि मेरी एक खुद की दोस्त है सिमरन करके, उसका भी साइंस बैकग्राउंड था, उसको इतना समझ नहीं आता था, सो वो आती थी, उसके साथ और भी स्टूडेंट्स आते थे एंड टीचर यूज्ड टू टीच देम। और बिलीव मी, सिमरन वाज अ टॉपर, सिमरन एक टॉपर बनी फिर, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ये बात जानते हैं, 16-18 की टॉपर है वो अलॉन्ग साइड विद मी। तो वो चीज़ें होती थी। सो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आपको जब भी कोई डाउट होगा या आपका कोई भी बैकग्राउंड है या साइंस कॉमर्स आर्ट्स, फिक्र मत करो यार, they'll help you out. That's my word, these are my words, trust me, they're gonna help you till the time the doubt is not resolved. They'll not move forward. This is what I have experienced, and this is something, one of the best things which I have seen in the Lloyd, that the faculty focuses on every student पे focus रहता है, तो rest is assured. This you can mark my words. Yeah, now moving on to it, changes in the Lloyd which I have seen, as I told you, the IBM lab. IBM lab is for sure is a very major advantage in your what do we say it, in your cell, in your resume. You can add it, you can do it, certification कर सकते हो। प्लस थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है लॉयड का, कंपैरिजन जो हमारे टाइम पे था, जो इस टाइम पे करेंटली है, विच आई फील लाइक यार मुझे अब एमबीए करना चाहिए था, विच आई फील लाइक, बट ठीक है मैंने उस टाइम कर लिया, लेट इट बी, मुझे अब एमबीए करना चाहिए था, विच आई थिंक सो, seeing the things which have developed in a very unique way, so yeah, very happy with it. लाइब्रेरी बहुत अच्छी हो गई है, लाइब्रेरी पहले भी अच्छी थी, लाइब्रेरी वाज वेरी गुड, बट इस टाइम पे और भी बहुत अच्छी हो गई है, और भी बुक्स अवेलेबल हैं, और भी चीज़ें आपके लिए, मटेरियल्स अवेलेबल हैं, गो ग्रैब देम एंड डू इट। क्योंकि मैंने लाइब्रेरी से, मुझे बुक्स बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुई, मैंने जितना भी था, लाइब्रेरी कार्ड होता था हमारा, लाइब्रेरी कार्ड से मैं वो बुक्स लेता था, मैं पढ़ता था, मैं घर लाता था, एंड आई यूज्ड टू रिटर्न इट। अब आपके पास क्या एडवांटेज है, यू हैव मोर बुक्स ओवर देयर, यू हैव मोर कंटेंट ओवर देयर, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा आपके पास थ्योरीज होगी, या जो भी आपके नॉलेज के लिए जो भी चीज़ें होंगी, दैट विल हेल्प यू। मैगजीन्स हैं वहाँ पे, न्यूज़पेपर्स तो डेफिनेटली 8-10 न्यूज़पेपर्स रहते ही रहते हैं लाइब्रेरी में, जो खुद मैंने अपने टाइम पे देखा है। तो हर न्यूज़पेपर की अपनी एक चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात अपनी वोकैबलरी पे, वोकैबलरी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। सो ये चीज़ें हैं, ग्रीन कैंपस तो है ही है, ये इको फ्रेंडली है ही है, एंड स्टिल देर आर समथिंग लाइक आई वुड से, हमारे टाइम पे, एट आवर टाइम, इतने ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी, होती थी बट ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, बट अब बहुत अच्छे लेवल्स पे होती हैं, एंड काफ़ी डिफरेंट ग्रुप्स हैं कॉलेजेस के, which focuses on your communication skills, which focuses on your presentation skill, because I know I in 2018 or 19 I visited campus, just कुछ मेरा काम था, and there was a batch for the BBA was there, the PGDM was there, the MBA was there, and उस टाइम पे एक presentation competition चल रहा था कि that how you need to present it, because when you come into the corporate presentation, तो आपको आना ही, प्रेजेंटेशन बनाना भी आना चाहिए, प्रेजेंटिंग स्किल्स भी आना चाहिए, एंड यू नीड टू नो कि आपको अपनी ऑडियंस को कैसे, यू हैव टू इंटरेक्ट एंड यू हैव टू प्रेजेंट दैट, कि एक एक चीज उनके
दिमाग में भी जाए और कोई बोरियत ना हो। और यू हैव टू यूज दैट पोडियम, जो भी आपको पोडियम मिलेगा या जो भी चीजें हैं वो आपको कैसे यूज करनी है वो आपने देखनी है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज लाइक यार ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं हो, अगर हमारे टाइम पे होता तो आई वुड हैव बीन अ मोर बेटर पर्सन विच आई एम टुडे। ठीक है, लॉयड ने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर भी, एंड जो हमारा बैच था उस पर भी करी, बट जो चीजें अब है यार उसको देख के मैं आई एम लाइक डूड यार हमारे टाइम पे होती, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज फॉर द डूड, बट ये हमारे टाइम पे अगर होती ना, सो आई वुड हैव बीन मोर यू नो, मेरा बेस और अच्छा होता ना, आई वुड हैव बीन डूइंग मोर गुड इन माय लाइफ। आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी विद इट, बट एक वो हो जाता है यार कि जब चीजें आप देखते हो कि और अच्छी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, इट्स लाइक यार काश 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 काश, तो वो चीजें होती हैं। सो ये चीजें होती हैं which will help you, क्योंकि many of us fear, many of us have the stage fear, many of us like we cannot interact in the larger audience। अगर कहीं पे 10 बंदे देख लिए या 50 लोग देख लिए, कुछ ऐसा देख लिया, हम बात नहीं कर सकते, बहुतों में आप में वो प्रॉब्लम होगी, बट लॉयड विल हेल्प यू टू गेट overcome it, because they will have a debate competition, they will have your presentation competition, presentation skill competition, they'll work on your communication skills overall. Now they are focusing on the personality development also, which is a very good aspect. If you are doing all these kind of things if the college is focusing on all this kind of a thing, just believe me, you are ticking every box required for the corporate, which is a very plus point for you and which is a great advantage for you. So yes, I would at the end I would like to say ki bhai, you should go, you should grab the opportunity, because it's a land of opportunity now. My journey was a roller coaster ride, but the college helped me a lot, and still they are helping me, they are guiding me, and I'm very grateful to all the teachers. And believe me guys, जो facilities हैं अभी लॉयड की, वो facilities अभी कहीं available नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन करवाते हैं, बहुत कॉलेजेस करवाते होंगे, लेकिन किसी कॉलेज में उनकी खुद की लैब नहीं होगी एनालिटिक्स की जो फोकस करवाती होगी कि एनालिटिक्स पे ध्यान दो। एंड बिलीव मी, इन 2021 एंड 2022 मोस्ट प्रोबेबली एनालिटिक्स की डिमांड बहुत ह्यूज जाने वाली है, एंड एवरी कंपनी गोना हायर, और पैकेज भी बहुत अच्छा जाने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कॉलेज हैज स्टार्टेड द एडिशनल कोर्स लैंग्वेज ऑल्सो, BFMI करके भी है, बैंकिंग फाइनेंस भी है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, आप बैंकिंग के लिए देख सकते हो उसमें। एंड जर्मन एंड फ्रेंच भी स्टार्ट किया है, विच इज़ लाइक वाओ, मुझे जर्मन करनी थी बट आई कुडंट डू इट। So what it be, the college is in great shape, the college is in great hands, and the faculties and overall the staff, they are doing the rigorous effort to make the things better and better and better, and they are trying to cope with the current environment. एक होता है ना, there was a quote given in the biology which we used to study कि adaptation is the surviving of for the system. The Lloyd is adapting in the current scenario. जो जो चीजें चाहिए होती हैं, they are doing it so that you guys may survive in the market and you guys go to the top onto the market and rise and shine like a star, like a moon, whatever you want to. They are doing everything to make sure you get it. And the best part, it's not costly that much, it's very very cheap. Believe me guys, बाहर सर्टिफिकेशन करने जाते हैं, बिकॉज मैं से एक सिंपल सा सर्टिफिकेशन होता है, सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और ग्रीन बेल्ट होता है, उसी के समथिंग अराउंड 50 या 60,000 रुपीज लगते हैं सिर्फ नॉर्मल उसके करने के लिए। एंड एनालिटिक्स का तो फिर सोच ही लो, एंड द कॉलेज इज गिविंग यू गाइस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो ग्रैब इट। थैंक यू सो मच, दिस वाज माय टाइम। इफ एनीबॉडी हैज एनीथिंग, so please ask. Okay, very nicely quoted certain aspects, very nicely articulated the journey, starting from your personal profile, then coming to library part, coming to the analytics part, then ending with a very nice quotation regarding the adaptation in terms of ecosystem. So it was a very informative, and I will say it's an exciting session, and students must have enjoyed it, must have learned a lot, and must be exciting to have this journey, face this journey when they actually join the college.